Yeah. So uh, this is I'm recording this as a part two of my episode 18, continuing with my thesis. Yesterday there was some interruption, so I could not complete after that. Some visitors were there, so I'm recording it now at 12:30 p.m. Hoping against hope that there is no interruption today, and I would like to make it a little short today, very short, because I cannot tell you what kind of research I've been doing all night, international channels and geopolitical. So I'm putting it all on Facebook. So if you are interested, you can go through my links and connect the dots. So you have to use two things that Dr. Jagdish Seth taught me. I asked him, how are you able to earn 400, 500 crore rupees? And he's a professor of, I don't know he's alive or not. His wife is 6 feet and he was only 5 feet, 3-4 inches, short-heighted boy. And when I was going to drop him to Ahmedabad, and on the way some Jain temples were there, and his wife was, she's from Kutch, Gujarat. So we then got an opportunity to talk, and then we were talking, and I asked him a very casual question, but very pointed. I wanted to know, Manka, what is the secret of your success? You are able to earn 300, 400 crore rupees every year as a global marketing expert. What exactly? Because I was very impressed with this Chindia, China, India. His prediction was that China and India, if they come together, they can rule the world. So that is what I mentioned in one of my episodes. You can go through those episodes. I don't know which episode it is. No, this is the 18th episode. So let me come to the point. So formula he gave me, same formula I am sharing it with you, all of you. That use two things, common sense and connect the dots, connecting the ability to connect the dots. I mean, I know you are Sanatani and Hindu and Indian, and you are enslaved and conditioned to think like an Indian. No, if you have to arrive the truth, you have to forget your different entities. You have to be assumption free. You have to be critical thinker, fast, accurate, assumption free. But our mind is wired like that we have to assume something. So the way I make my mind as assumption free is make opposite assumptions. If you're making an assumption of North Pole, make an assumption of South Pole also. So they'll cancel each other. Then make another assumption of East, another of West. 4 assumptions. In fact, you can make 360 assumptions. Circle 360 degrees. So think like a critical mind. तो वो मैंने सारा किया है. तो चलिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि मेरे को आई पॉपिंग डिटेल्स समझ में आ रही हैं. आई पॉपिंग डिटेल्स, ये जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसका पूरा इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, हम सब वहम में थे. इंडिया में एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड, शोबाजी, एग्जीबिशनिज्म, हर चीज़ को इवेंट बना लेना. अभी भी हम इवेंट बना रहे हैं. अभी भी 4-5 दिन से मैं देख रहा इवेंट है. इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, इंडिया की तरफ से. मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है. हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं. बांग्लादेश को अब हम हिंदू देश बना देंगे, ये कर देंगे, पूरा हमने घेर लिया है, उसको अटैक कर लेंगे, चारों तरफ से कर देंगे. हंसी भी आती है, रोना भी आती है कि वी कैन नेवर गेट सीरियस. और जो गवर्नमेंट के जो इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक्स हैं, मुझे पता है वो चाणक्य डायलॉग, एक वो मेजर गौरव आर्या, आई कॉल हिम जोकर, क्लाउन, और दूसरा वो मेजर जनरल GD बख्शी. किस तरह के ये सारे लोग, इनको ये 2-2, 4-4, 10-10 हज़ार रुपये मिलते रहते हैं. उसके लिए ये कुछ भी इनसे बकवास करा लो. तो मेरी अब ये है कि मैं आपको असलियत तो अब मंडे को ही शायद बता पाऊँगा. बड़ी भयानक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है जियोपॉलिटिकल, और ये बड़ी सोची समझी नीति के साथ हुआ है. और वो कोई इंडिया से, ये पाकिस्तान का ऑफकोर्स एक एफर्ट तो पाकिस्तान सपने में तो चाहेगा कि वापस ईस्ट पाकिस्तान बन जाए, वो नहीं होगा. बांग्लादेश ने अपनी इंडिपेंडेंस दिखा दी है. यहाँ के यंग बच्चों ने, 3 बच्चों ने दिखाई है. और वो ना तो एंटी इंडिया ना एंटी पाकिस्तान है, वो प्रो बांग्लादेश है. अब बांग्लादेश से भी ज़्यादा उनकी जो नीड्स हैं, भूख
भूख को समझे, हंगर की लड़ाई यहाँ इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, पूरे वर्ल्ड में है। देखा नहीं जब वो शेख हसीना के उसको उन्होंने किया, कैसे वो खा रहे थे, उनके बच्चे बेचारे। मतलब भूख आपसे क्या नहीं करवाती। आपने शादी बारातों में भी देखा होगा कि इतनी ज़्यादा हमारे माइंड भूख है, शरीर भूखा नहीं है, माइंड भूखा है। शरीर तो नहीं भी खाओ 2 महीने 3 महीने, मैंने खुद करके देखा, चल जाएगा, जिंदा रहोगे आप। जानवरों की तरह जंगली जानवर। मैंने एक पिक्चर देखी थी, सत्ते पे सत्ता, अमिताभ बच्चन के 6 भाई और 7 होते हैं, वो इमाम वाले उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करते, सिविलाइज बन जाओ, बंदरों की तरह भूख टूट पड़ते हैं खाने पे। हमारे यहाँ भी यही हाल है। मेरे अपने, मैं अब क्या, छोड़ो, यहाँ की बातें मैं नहीं बताता। जो मैं जैसे मैं भूख को देख रहा हूँ, भूख का यहाँ पे हाल है, क्या मैं बताऊँ। तो आज ये एपिसोड 18 है, धीरे बोल रहा हूँ, उसका पार्ट 2 है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो दिख नहीं रहा, वो नहीं दिख रहा। और इंडिया के ऊपर अब बहुत ज़बरदस्त खतरा आया हुआ है। मैं फिर से इंडियन गवर्नमेंट को भी वार्न कर रहा हूँ, आप सबको कर रहा हूँ। मैंने वो जो 20 किलोमीटर कॉरिडोर की बताई थी कि जैसे ही वो काट लिया जाएगा कॉरिडोर, बांग्लादेश और भूटान के बीच का 20 किलोमीटर का कॉरिडोर है हमारे पास, हमारी सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो चाइना को सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलेगा, सातों की सातों स्टेट, और उन सबकी जो नेचुरल हैबिटेट है। ये मुझे एक पाकिस्तानी चैनल से पता चला, और एक बड़ा सीरियस सोबर चैनल है। मैं उरिया मकबूल जन को भी बहुत सुनता हूँ, उनकी मैं बहुत कदर करता हूँ। हसन निसार मेरे को एक और अच्छे लगते हैं पाकिस्तान के, उनकी भी मुझे। मगर हमारे यहाँ सारे जोकर भरे हुए हैं, जोकर भरे हुए हैं। चनके डायलॉग के नाम से, पता नहीं उस नाम से हम क्या क्या सपने लेते रहते हैं। और अभी भी हम हिंदू राष्ट्र के सपने ले रहे हैं। बुद्धू लोगों, गधे गधेड़ों, पहले क्रिश्चियन कैलेंडर से तो पीछा छुड़ा लो। आप क्रिश्चियन कैलेंडर से तनख्वाहें दे रहे हो, क्रिश्चियन कैलेंडर से, ईसाई कैलेंडर से हमारी सारी गवर्नमेंट अकाउंटिंग चलती है। हिंदू कैलेंडर का वहां जाके लाने की कोशिश तो करो, देखो तो सही, मुंह के बल गिरोगे। और जो कल मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया, हमें इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है। वो मैंने 2-2.5 करोड़ हिंदू कह दिए थे, अब मुझे लेटेस्ट जो पता चला वो 1 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं, 1 करोड़ 20-25 लाख जितने भी हैं। अब क्या सच में हम हिंदू राष्ट्र छोटा सा बना सकते हैं, कॉरिडोर बना सकते हैं? मेरे भी दिमाग में अजीब सपने आते हैं, कॉरिडोर एक बना लो 10 किलोमीटर का, हमारी फौज को कब्जा कर ले। बट हमारी फौज कब्जा कर ले तो उसको बांग्लादेश को पूरी इंटरनेशनल बैकिंग है इस टाइम। मोहम्मद यूनुस को बनाया है तो वो पागल नहीं है, पढ़ा लिखा है, नोबेल लॉरिएट है। और हमारे अनपढ़ लीडर से तो मेरे को कई बार हंसी भी आती है कि मोदी और मोहम्मद यूनुस कैसे आपस में क्या बात करेंगे, नहीं कर सकते। मतलब एक बिल्कुल नॉलेज की उस, और उसने आते ही सबसे पहली चीज क्या कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब तक हिंदुओं की ऊपर तुम अटैक बंद नहीं करोगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। और वहाँ के बच्चे भी जो 3 लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं। थोड़ा जो डर लगता है वो जमात इस्लामी से, नेचुरली आईएसआई, मैं आईएसआई वगैरह को भी दोष नहीं देता, क्या हमारी रॉ नहीं करती क्या? इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ही होता है खुराफात करना, शरारत करना, अपने लीडर्स को गलत संदेशे भेजना, झूठे संदेशे भेजना, ताकि उनको जो पैसे मिलते हैं उन पैसों का, अच्छा भाई आपको नहीं पता, इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो भर भर के पैसा दिया जाता है, सूटकेस भर के पैसा दिया जाता है, उसकी कोई ऑडिट नहीं होती। और मैं कैसे समझाऊं, मैं यहाँ जिसको भी देखता हूँ, मेरे को भी पैसे की नीड है, प्रॉब्लम्स हैं मुझे, मैं बड़ी मुश्किल से अपना, मैं कैसे बता नहीं सकता कि मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ। मगर मैं कभी भी, मैं खुद आपको पहले दिन से कह रखा है, मुझे कोई मोनेटाइज नहीं करना, तो मुझे 1 पैसे की भी आपकी वो नहीं चाहिए। आप ना देखो मेरे उसको तो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन ना देखो, मगर मैं सच की खोज में हूँ, और सच के मैंने देखा है क्षण क्षण में बदल रहा है, घंटे घंटे में बदल रहा है। तो जो मुझे पता चल चुका है कि बड़ा सीरियस है, और ये अचानक होगा, ये बहुत अचानक होगा कि हमारी वहाँ 3-4 लाख फौज फंस जाएगी। हमने 90,000 उनके पकड़े, पाकिस्तान के 71 में, वो हमारे 3-4 लाख चाइना पकड़ लेगा, सरेंडर करवाएगा हमसे। और अभी मैं देख रहा था, अभी 5 मिनट पहले देखा है, वो डॉक्टर दिनेश बोरा, वो मुझे अच्छे करते हैं, हिंदी चीनी भाई व्यंग करके लिखते हैं कि आनंद महिंद्रा ने कोई 25,000 करोड़ की डील करी है चीन से।
मैं अपने लीडर से पूछना चाहता हूँ, चीन या तो आपका दुश्मन है, मतलब कैसे आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्यों उसको इतने पैसे कर रहे हो? एंड एज एक्सपेक्टेड वो फैक्ट्री जो है 25,000 करोड़ की शुंग ऑटोमोबाइल फैक्ट्री आनंद महिंद्रा ने करी है, और फैक्ट्री लगेगी कहाँ? ऑब्वियसली गुजरात में, क्योंकि जब इंडिया में भी बहुत तमाशा होने जा रहा है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही तमाशा होने जा रहा है, तो जब सारा ये तमाशा होगा ये भाग के कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान के तो कहीं वो, उनके पास तो चलो उनको वेस्ट की सपोर्ट है, नवाज शरीफ फैमिली आपने देख ली थी। हमारे ये भाग के कहाँ जाएंगे? ये अपने गुजरात में जाएंगे या कैलाश मानसरोवर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? शेख हसीना तो यहाँ पर आ गई, और शेख हसीना की क्या बकवास सुन रहा हूँ, उसका बेटे की कैसी बकवास है कि वो वापस जाएगी लक्षण। अरे अवामी लीग के लोगों को मार दिया जा रहा है, अवामी लीग ऐसे पार्टी खत्म की जा रही है, चुन चुन के उसको खत्म किया जा रहा है। वो खलीदा ने भी पहली जो कल करी उसमें काफ़ी भीड़ आई। ये क्या है? मैं तो मतलब मुझे वो हसन निसार की एक बड़ी कमेंट अच्छी लगी कि शेख मुजीबुल का मर्डर उस दिन नहीं हुआ था, 15 अगस्त 1975 को नहीं हुआ था जब फौज के लोगों ने मार दिया था उसको, 18 लोगों को, परिवार को। उसका मर्डर कल फिर हुआ है, परसों, ये जो 5 अगस्त को उसकी बेटी के हाथों हुआ है, जो उसकी तोड़ी गई है ये मुजस्मा, मुझे भी उर्दू वर्ड आ रहे हैं, उसकी जो मूर्ति तोड़ी गई है उसका वो तोड़ी गई है, करेंसी से उसका फोटो हटाई जाएगी। इंडिया से जो भी पहचान बांग्लादेश की आज तक बनी है उसको नेस्त व नाबूद कर दिया जाएगा, और हम अपने सपने ले रहे हैं। बट एक पॉजिटिव साइड ये है कि आरएसएस वालों को, ये मेजर त्यागी ने लिखा है और राजीव त्यागी जी ने मेरे से बड़ा अच्छा, कि वो चिंटू, नफरत का चिंटू बिंटू पता नहीं क्या बोल रहा था, वो जो राम माधव की बात कर रहे थे, जिसने पूरे कश्मीर को बर्बाद कर दिया, आरएसएस का एजेंट है वो, और पूरे उसने मणिपुर को बर्बाद कर दिया। आज वो सेकुलर हीलिंग का टाइम आ चुका है, अब वो माफ़ी मांगने का टाइम आ चुका है। अब इनको समझ में आया है कि अगर हम मुसलमानों को यहाँ प्रताड़ित करेंगे, बेइज्जती करेंगे, तो क्या हाल होता है, कैसा हाल हो गया, और अचानक हुआ है। और उधर से वो शुरू होने जा रहा है, इजराइल और शुरू हो भी चुका है, हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया, ईरान भी एक दिन में 12 को मुझे लगता है अटैक करेगा, वो 12 को करेगा। मैं उसका रीज़न बाद में बताऊँगा 12 को क्यों अटैक करेगा। आज 10 है, 2 दिन का टाइम है, मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। ईरान का जो अटैक है वो 11-12 को वो हो जाएगा। तो मुझे आज हसन निसार की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो शेख मुजीबुल का जो असली मर्डर हुआ है वो उसकी बेटी के करतूतों की वजह से हुआ है। उसकी बेटी ने जो इंडिया का वो एजेंट बन के, पिट्ठू बन के, जो उसने वहाँ जो तबाही मचाई, और हमारे यहाँ भी तो वही कहानी हमारे यहाँ भी चल रही है। विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कोई सबको जेलों में डाल दो, मार दो इनको, मुसलमानों को मार दो। मैं तो शुरू में कॉमन सेंस से कहता था 18 करोड़ मुसलमान हैं, कितने मार दोगे? 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ मार दोगे, फिर भी 13 करोड़ बच जाएंगे, और सारे मुसलमान बढ़ के यूनाइट हो गए, वो आरएसएस को वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ वो, मैं बता भी नहीं सकता कहाँ पहुँचाएंगे। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत सारी खतरनाक न्यूज़ मिल रही हैं, बहुत सारी मैं डीप रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे कोई अगर सपोर्ट मैं आप किसी से कहूँगा तो नहीं, बट मेरे को भी तो ये रिसर्च करने के लिए मेरी आंखों पे जोर पड़ता है, सब कुछ पड़ता है। मैं बहुत नॉलेज दे सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, हिंदुओं के लिए। मेरे लिए हिंदू, मेरे लिए कोई, मैं सबके लिए मेरा दुख बराबर है, सब बराबर है। बट अभी भी वो सनातन, ओम, ये वो मेरे पीछे भी लगे रहते हैं, वापस मुझे भक्ति के उसमें डालना चाह रहे हैं। क्या तमाशा है। मेरे पास 2 ही वेपन है, मैं वो यूज़ करूँगा, कॉमन सेंस और चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए सच की खोज करने के लिए जो आपका ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लैंडलॉर्ड हो तो टेनेंट बन के सोचो, टेनेंट हो तो लैंडलॉर्ड बन के सोचो। अगर हमें इंडिया की रक्षा करनी है पाकिस्तान उससे, तो हमें पाकिस्तानी बन के सोचना पड़ेगा, बांग्लादेशी बन के सोचना पड़ेगा। नहीं, हम अपने को तो अपनी पीठ तो सारे थपथपाते हैं। कहने को तो हमारी फौज भी अभी कहे कि हम 2 फ्रंट लड़ लेंगे, 3 फ्रंट लड़ लेंगे, 4 फ्रंट लड़ लेंगे, 5 फ्रंट पे हम लड़ लेंगे। जिस दिन लड़ना पड़ेगा ना, तो आपको पता ही था चीन ने हमारे मतलब 22-25 जिस दिन मार दिए थे, कर्नल भी मारा था, बहुत दुखो, डंडों के आगे वो लगा के उन्होंने कर दिया था जीपी ने, और ये उसको झुला रहे थे अहमदाबाद में, गांधीनगर में, कहाँ अपने उसमें बैठ के। क्या तमाशा है। और आज भी हम चीन को सपोर्ट किए जा रहे हैं, पैसे उनको दिए जा रहे हैं। 110-12 बिलियन डॉलर का चीन हमें, हर चीज़ चाइना की है, दिखता नहीं है आपको क्या?
तो चलो काफ़ी हो गया। मैं आज अभी मैं पूरा कोई इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता, मैं अभी चुप रहूँगा, बहुत खोज कर रहा हूँ और 15 मिनट मेरे हो चुके हैं और ये सेकंड पार्ट पूरा हो जाता है। और अब मैं मंडे को 4 बजे जो करूँगा, मंडे का मतलब है आज 10 तारीख है ना, तो 11 हाँ 12 तारीख को, 12 अगस्त को, और 12 को ही वो अटैक करेगा, मुझे पता ही ईरान। 12 अगस्त को मेरे भाई का भी जन्मदिन था, वो तो अब चला गया 5 जनवरी को, 12 अगस्त को था। क्या क्या बोलूं? चलिए आज बस इतनी कह के आपको मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आज कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, दे भी नहीं सकता, बट बड़े दुख से कहता हूँ कि हम अभी भी सुधरे नहीं हैं, हम सुधरे नहीं हैं। हमारे अंदर वो जलेबी घुमाने की मक्कारी से हम बाज नहीं आ रहे, जलेबियाँ घुमा रहे हैं, जलेबियाँ घुमा रहे हैं, मगर जब लड़ाई शुरू होगी ऊपर से जलेबियाँ नहीं गिरेंगी, ऊपर से जो गिरेगा देख ही रहे हो बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है। 28 हिंदू मार दिए गए जो 5 स्टार होटल के, मुझे उनका भी बहुत दुख है, बहुत दुख है। बट ये सब हमारी करतूतों से हुआ है। हम जो यहाँ मुसलमानों के साथ करेंगे वो अब 10 गुना ज़्यादा बड़ा बदला निकालेंगे, और हमारी धमकियाँ देने से कुछ नहीं होगा। हमारी फ़ौज के पास अभी मैं क्या कहूँ, वो उतनी तैयारी नहीं है। मैंने कल बांग्लादेश फ़ौज पे भी पूरी रिसर्च करी, पूरा उनका ढूंढा, फिर उसकी बैकिंग वालों का ढूंढा, फिर चाइना के देखा, फिर मैंने पाकिस्तान का देखा, फिर ये कि सराउंड हमें कर लेंगे तब क्या होगा। सारे नेबर्स हमारे खिलाफ हो चुके हैं, सारे नेबर्स। श्रीलंका हमारे खिलाफ है, मालदीव हमारे खिलाफ है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गया, नेपाल हमारे खिलाफ है। मैं क्या क्या गिनाऊँ, कहाँ तक गिनाऊँ। भूटान में भी उन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी वो कर ली है। ये किस तरह की हमने बेवकूफ़ियाँ करी हैं। और बहाना हमारा क्या था, बस एंटी मुस्लिम, रगड़ो मुसलमानों को, रगड़ दो इनको, इनकी बेइज्जती करो। बीजेपी ने कोशिश कर ली थी कि एक भी टिकट नहीं दिया उन्होंने, किसी मुसलमान को एक भी टिकट नहीं दिया। 18 करोड़ का देश, और तुम्हारी पार्टी में तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें एक टिकट नहीं दे सकते, तुम्हें एक मुसलमान नहीं मिला, तुम्हें ईमानदार। अच्छा, मेरे को खुद शर्म आती है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखते रहिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। और मंडे तक मेरे को टाइम दीजिए, फिर मैं आपके सामने कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, असली इन्फॉर्मेशन लाऊंगा। ओके, ये जलेबी घुमाने वाली नहीं लाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय आप सबको। और ये मैं 4 बजे अपलोड करूंगा, अभी नहीं करूंगा। शुक्र है अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कुछ नहीं। थैंक यू आप सबको, मेरी वाहिगुरु, आप सबको मेरा आशीर्वाद। शांत रहिए, स्ट्राइक बनिए। इवेंट्स को जब कंट्रोल नहीं कर सको, अपने विचारों को कंट्रोल करो। अपने विचारों को आप कंट्रोल कर सकते हो, मैं कर लेता हूँ। सिखाऊंगा आपको स्ट्राइक कैसे बनते हैं। स्ट्राइक बनो। ओके, बाय।